وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھی، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ جی بہتر ہے۔ وہ میرے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور سوالیہ نظروں سے پیکٹ کی طرف دیکھنے لگی، اور میں نے پہلی ساڑی نکال کر اسے دکھائی۔ کیسی ہے یہ ساڑی؟ میں نے ساڑی اس کی طرف بڑھا دی۔ اور بہت ہی پیاری ہے، اپنے لیے خریدی ہے نا آپ نے؟ سنو سنبل، اگر میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن بنا لوں تو کوئی اعتراض تو نہیں کرو گی؟ اور میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے کوئی اعتراض ہوتا تو پھر آج سے تم مجھے باجی کہو گی۔ کہو باجی۔ باجی، اس کے خوبصورت ہونٹ ہلے۔ اور تو اسی خوشی میں یہ ساڑی تمہاری، اور یہ شرارہ سوٹ اور شلوار سوٹ بھی تمہارے۔ اور میں نے بقیہ کپڑا بھی اس کے طرف بڑھا دیا۔ اور کیسے ہیں یہ سوٹ؟ سنبل کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے اور بڑی نظر آنے لگی، اور پھر وہ بولی، مگر باجی یہ تو بہت مہنگا کپڑا معلوم ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اور ہاں، تمہارے بھائی جان نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے گھر میں لڑکیاں شادی سے پہلے ساڑی نہیں باندھتی، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ بس تمہیں ایک بار ساڑی باندھے ہوئے دیکھ لوں۔ بولو، میری خواہش پوری کرو گی؟ لیکن باجی مجھے تو ساڑی باندھنا آتا ہی نہیں، اور کبھی باندھی ہی نہیں۔ وہ تو تمہیں میں سکھا دوں گی۔ تم آج ہی بلاؤز اور پیٹی کوٹ کسی اچھے درزی کو سلنے کے لیے دے دو، اور گھر میں مشین موجود ہے، میں خود ہی سی لوں گی۔ لیکن ایک بات آپ بھی میری مان لیں۔ بولو، آپ یہ کپڑے میری بجائے امی کو دے دیں کہ میرے لیے لائی ہیں۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ شہزاد نے بھی اپنی بہن کی تائید کی۔ منظور ہے، اور چائے پی لوں تو چلتے ہیں۔ اور میں راضی ہو گئی۔ چائے پینے کے بعد شہزاد اور سنبل کے ساتھ میں دالان میں پہنچی، جہاں شہزاد کی ماں حسب معمول پلنگ پر بیٹھی پان لگا کر گلے میں رکھ رہی تھی، اور میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ارے رانی بیٹا، تم ہو؟ وہ بولی۔ جی، میں بلند آواز میں کہا، اور کیونکہ مجھے علم تھا کہ وہ اونچا سنتی ہیں، اور کپڑے میری گود میں رکھے ہوئے تھے۔ اماں، رانی صاحبہ نے اپنی گڑیا کو چھوٹی بہن بنا لیا ہے، شہزاد نے اپنی ماں کی دوسری طرف بیٹھتے ہوئے بتایا۔ اور یہ تو خوشی کی بات ہے۔ اور بڑی بی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اور بہن بنانے ہی کی خوشی میں سنبل کے لیے میں یہ کپڑے خرید کر لائی ہوں۔ اور میں نے کپڑے اٹھا کر بڑی بی کے سامنے رکھ دیے۔ وہ کپڑے اٹھا کر آنکھ کے قریب لے جانے لگی، اور چٹکی میں لے کر بھی دیکھیے، یہ تو بہت مہنگے کپڑے لگ رہے ہیں۔ ہاں اماں، سنبل نے تصدیق کی، اور پھر کپڑوں کی تفصیل بتائی۔ اچھا، تو یہ ساڑی ہے، مگر شادی کے بعد باندھ لے گی؟ اور میں فوراً بول اٹھی، یہ تو خیر ٹھیک ہے، لیکن رانی بیٹا، تم ہم پر اتنا بوجھ کیوں چڑھا رہی ہو؟ ہم غریب لوگ آخر یہ بوجھ کیسے اتاریں گے؟ اور سنبل کو میں نے اس لیے بہن تو نہیں بنایا کہ آپ سے بوجھ سمجھے، کہ آپ مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھتی۔ وہ تو خیر تم ہو، اور اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اس نے دعا دی، اور پھر کپڑے سنبل کو دیتے ہوئے کہا کہ اپنے جہیز کے لیے رکھ دے، مہنگے کپڑے ہیں۔ اور سنبل نے شرما کر کپڑے لے لیے، اور اسی وقت بکرے کی آواز سن کر میں چونک اٹھی۔ سامنے نظر اٹھا کر دیکھا تو شہزاد کا باپ ارشد علی نظر آیا۔ وہ بکرے کی رسی تھامے ہوئے دالان ہی کی طرف آ رہا تھا، اور دور ہی سے اس نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا، شہزاد کی ماں، صدقے کے لیے بکرا لے کر آیا ہوں میں۔ چلو، یہ اچھا ہوا کہ تمہارے ابا بھی آ گئے، اور انہیں بھی کپڑے دکھا دو، شہزاد کی ماں نے سنبل سے کہا۔ معلوم ہوا کہ رات کے واقعے میں سنبل کی جان بچ جانے کی وجہ سے ارشد علی بکرا خرید لایا تھا کہ صدقہ دے سکے، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے لائے ہوئے کپڑوں کی اتنی تشہیر ہوگی، اور اسی سبب مجھے شرمندگی سے محسوس ہونے لگی، اور بہرحال میرے تحفے کو قبول کر لیا گیا۔ شام کو مغرب سے پہلے دکان بند کر کے آ جاؤں گا تاکہ قربانی کر سکوں، اور فرحاد کو دکان پر بٹھا کر آیا ہوں، وہ کلس رہا ہوگا، جا کر اسے بیچتا ہوں۔ لے بیٹا، بکرا باندھے۔ اور ارشد علی نے بکرے کی رسی سنبل کو تھما دی اور چلا گیا۔ اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ دوپہر کو کھانا کھا کر مجھے بھی یوں بھی آرام کرنے کی ضرورت تھی، اور کپڑے بدل کر بستر پر لیٹ گئی، اور گزشتہ رات جو واقعہ پیش آیا تھا
उसे मद्देनजर रखते हुए मैं सोच रही थी कि आज की रात भी मुश्किल है करिए से गुजरे, और लानती चंपा अभी तक मुझे उस घर में जलीलो रुसवा नहीं कर सकी थी, और उससे किसी भी गिरी से गिरी हुई हरकत की तवक्का की जा सकती है। और मैं इस वक्त यही सोच रही थी कि चंपा के मुमकिन हमले से किस तरह बचना मुमकिन है, और ये कि मैं कलकत्ते ही में अरशाद हुसैन से पूछ चुकी थी कि उसकी तंजीम दिल्ली में मेरे लिए सकूनत का बंदोबस्त कर सकती है या नहीं, और अरशाद हुसैन ने इकरार में जवाब दिया था। और शहजाद का घराना शरीफ लोगों का था, और मेरे नज़दीक ये अच्छा नहीं था कि मेरी वजह से वो लोग किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाते या मैं उनकी नज़र में बेइज्जत हो जाती। काफ़ी गौर खोज करने के बाद मुझे उसका एक हल ही नज़र आया। मुझे शहजाद के घर में अपनी सकूनत तर्क कर देना चाहिए, और तंजीम के अरकान से मुझे आइंदा रोज़ मिलना था। उनसे मुलाकात होने ही पर सकून का बंदोबस्त करने के लिए कहा जा सकता था, और ये ज़रूरी नहीं था कि वो कल ही ये बंदोबस्त कर देते, और उसमें 1-2 दिन ज़्यादा लग सकते हैं। और अगर फौरी तौर पर भी ये मसला हल कर देते, और फिर भी मुझे एक रात उस घर में गुजारना ही थी। लेकिन गुज़श्ता रात के हौलनाक तजर्बे के बाद मैं एक रात का भी रिस्क लेने पर आमादा नहीं थी, और दिल्ली का शुमार भी हिंदुस्तान के बड़े शहरों में होता है, और जब से अंग्रेज़ों ने उसे दारुल हुकूमत बनाया था उसकी अहमियत और बढ़ गई थी, और वहाँ आला दर्जे के होटलों की क्या कमी हो सकती थी। और एक मरतबा मैंने कलकत्ते में भी तंग आकर होटल का रुख किया था, मगर डसूजा के अगवा की वजह से खुफिया पुलिस वालों की होटलों की निगरानी कर रहे थे, और उसी वजह से मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी थी। इस मसले पर मुझे एक और हल भी नज़र आया, मगर वो भी देर तलब था, और इस तरह ना मुझे तंजीम का सहारा लेना पड़ता और ना शहजाद के घर में रहने पर मजबूर होती। आर्जी तौर पर मैं कोई मकान किराए पर ले सकती थी। उस सिलसिले में शहजाद मेरी मदद कर सकता था, और मकान तलाश करने और किराए पर हासिल करने में वक्त लग सकता है, और इस सिलसिले में शहजाद भी मेरी मदद कर सकता था। कुछ देर बाद शहजाद कमरे में आया और बैठे ही कहने लगा, यह सुंबल कह रही है कि आपने पहले तो अपने किसी अजीज़ का जिक्र नहीं किया था जो दिल्ली में रहते हैं। अगर कोई अजीज़ यहाँ होता तो जिक्र करती ना, मैं हंस दी। तो फिर वो सुंबल से आपने तो और उस गरीब से क्या कहती, मैं फिर संजीदा हो गई। बात दरअसल ये है शहजाद कि तुम्हारे घर में मेरा रहना किसी भी तरह मुनासिब नहीं। वो क्यों खातून, उसने हैरत से पूछा। क्या गुज़श्ता रात का वाक़या भूल गए? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोग किसी मुश्किल में पड़ जाओ, और मैं अगर यहाँ मज़ीद एक रात भी रही तो ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि तुम लोगों के लिए भी ये मुनासिब नहीं होगा, और मेरी वजह से कोई नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन आप यहाँ नहीं रहेंगी तो फिर कहाँ रहेंगी? शहजाद परेशान सा हो गया। और ये मैं सोच चुकी हूँ, फ़िलहाल मैं यहाँ से किसी होटल जाऊँगी, मगर तुम अपने घर वालों से यही कहोगे जो मैंने सुंबल को बताया है। फ़िलहाल से आपकी मुराद क्या है खातून? उसने वजाहत चाही। तुम यहीं किसी करीबी महल्ले में किराए पर कोई मकान तलाश करो, और उसके बाद तुम्ही को मुलाजमीन का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। और ये कहते हुए अचानक मुझे कलकत्ता के तलख तजर्बात याद आ गए, और मौजूदा सूरत हाल में यही बेहतर था कि मैं अकेली रहती, और मुलाजमीन के साथ रहने की सूरत में लानती चंपा मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती थी। और ये ख्याल आते ही मैंने कहा कि अभी मुलाजमीन रहने दो, कोई ऐसी बूढ़ी या उधेड़ उम्र औरत मिल सकती है जो मेरे साथ रहने पर तैयार हो जाए। हाँ, क्यों नहीं मिल सकती, और तलाश करने से तो खुदा भी मिल जाता है। और मुझे ख्याल आया कि अगर मैं मर्द मुलाजमीन की बजाय 2-3 ज़रूरतमंद औरतों को मुलाजम रख लूँ तो लानती चंपा को किसी घटिया हरकत का मौका नहीं मिलेगा। और मैंने अपने इसी ख्याल का इज़हार शहजाद से कर दिया, और औरतें देखो, ऐसी औरतें जो मेरे साथ रह सकें। ठीक है खातून, मैं पहले मकान तलाश करता हूँ और फिर औरतें भी ढूंढ लूँगा। और यहाँ अच्छे होटल तो नई दिल्ली के ही इलाके में होंगे। जी हाँ, मगर उनमें क़याम ज़रा महंगा पड़ेगा। कोई परवाह नहीं, और बस अब तुम चलने की तैयारी कर लो। और वो सुंबल ने बड़ी मोहब्बत से आपके लिए कोफ्ते पकाए हैं, क्या खाना खाकर नहीं जाएंगे? हाँ, ये तो मैं भूल ही गई, वो ख्वा मुख्वा ख्याल करेगी। और भूख तो इस वक्त बिल्कुल नहीं, मगर खैर सुंबल की खातर खा लूँगी 2-4 नवाले। और हाँ, तुमसे इस कह दो कि जल्दी से रोटियां डाल दे, और उसे भी मेरे साथ ही खाना खाना है। शहजाद उठकर चला गया, और मैं कमरे से निकलकर बाथरूम में घुस गई। और फिर ज़रा ही देर के बाद मैं शहजाद के सब घर वालों के साथ खाना खा रही थी। कोफ्ते वाकई इतने अच्छे पके थे कि भूख ना होने के बावजूद मैंने
पूरी 2 रोटियां खा ली और सुंबल खाली बर्तन उठाकर बावर्ची खाने की तरफ चली गई। मेरे दोनों सूटकेस तैयार थे। शहजाद आ गया तो मैंने उससे चलने को कहा और एक सूटकेस खुद उठा लिया और ये भी मुझे दे दीजिए। उसने एक सूटकेस उठाकर दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं, एक सूटकेस मैं उठाकर चलूंगी। और मैंने दूसरा सूटकेस उसे देने से इनकार कर दिया था। और मैं आपके साथ हूँ खातून, तो ये कुछ अच्छा नहीं लगेगा, रहने दो बस। और मैं ये कहती हुई कमरे से निकल आई और फिर खाली टैक्सी के इंतजार में ज्यादा देर नहीं लगी। शहजाद ने आगे बढ़कर टैक्सी ड्राइवर से बात की और डिक्की में दोनों सूटकेस रखवा दिए और फिर हम टैक्सी में बैठ गए। अम्मा से कह देना फरहाद के वापसी में मुझे देर हो सकती है और मैं अपने एक दोस्त के घर होकर आऊंगी, शहजाद ने अपने छोटे भाई से कहा। बेहतर है भाई जान, कह दूंगा, फरहाद ने जवाब दिया और फिर मुझसे मुखातब हुआ। खुदा हाफिज। और खुदा हाफिज मैंने हाथ उठाकर बोली और उसी के साथ टैक्सी आगे बढ़ गई। नई दिल्ली में टैक्सी उस 5 स्टार होटल के हाथे में दाखिल हुई जिसके लिए शहजाद ने टैक्सी वाले से कहा था। और टैक्सी होटल के दरवाजे पर रुकी तो सामने खड़े हुए चौकीदार ने जल्दी से आगे बढ़कर हमारे लिए टैक्सी का दरवाज़ा खोला और सामान भी साथ है, शहजाद ने बावर्ची चौकीदार से कहा। यस सर। चौकीदार ने पलटकर शीशे के दरवाजे की तरफ देखा और हाथ से किसी को आने का इशारा किया और मैं उस अरसे में किराया अदा कर चुकी थी। टैक्सी ड्राइवर नीचे उतरकर डिक्की खोली और यके बाद देगरे दोनों सूटकेस डिक्की से निकाल कर नीचे रख दिए और होटल का एक बावर्दी पोर्टर लपकता हुआ आया और सूटकेस उठाकर हमारे पीछे चलने लगा। अंदर इस्तकबालिया काउंटर पर पहुंचकर मैंने एक सिंगल रूम के लिए कहा। उसने ज़रूरी कवायद मालूम किए और मेरा नाम रजिस्टर में लिखते हुए मुस्कुराकर कहने लगा, कितनी दिलचस्प बात है कि मिस आप ही की एक हम नाम इसी फ्लोर पर पहले से ठहरी हुई हैं और वह बम्बई से आई हैं। ये सुनकर मैं तकरीबन उछल पड़ी। बम्बई की रानी, और कहीं ये वही जुराम पेशा औरत रानी तो नहीं जो राजा उस्ताद मुझे समझ बैठा था। और आपका रूम नंबर 115 है और मिस रानी 111 नंबर के कमरे में ठहरी हुई हैं। और काउंटर मैन ने खुद ही बता दिया। है ना दिलचस्प बात? हाँ वाकई। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकी। और फिर मैंने बतौर एडवांस मतलूबा रकम अदा की और पोर्टर की रहनुमाई में जीने की तरफ बढ़ने लगी और शहजाद मेरे साथ था। क्या हुआ खातून, आप कुछ फिक्रमंद सी दिखाई देने लगी हैं, शहजाद मेरे साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए कहने लगा। नहीं तो, मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराई। ख्याल है तुम्हारा और जाहिर है कि मेरे ज़िन में जिन खदशात ने सर उबारा था और सो मैंने उनका इजहार शहजाद से नहीं कर सकती थी। 115 नंबर के कमरे के सामने पहुंचकर मैंने ताला खोला और अंदर दाखिल हो गई। ये कमरा पहले ही मंजिल पर था और असल में उसने ये होटल का सिर्फ 15 नंबर कमरा था, मगर 5 स्टार होटलों वाले हर फ्लोर की गिनती 100 ज़्यादा से शुरू करते हैं और दूसरे फ्लोर पर जो कमरे थे उनके नंबर 201 से शुरू होते हैं और हर फ्लोर के साथ 100 का इजाफा हो जाता है और 301, 401 वगैरह। और पोर्टर ने सूटकेस रख दिए तो मैंने उसे टिप देकर रुखसत किया और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। कमरा आरामदायक था और एक तरफ बेड पड़ा हुआ था और कुछ ही फासले पर 3-4 कुर्सियां और एक छोटी सी मेज़ रखी हुई थी और नीचे फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था। वार्डरोब और लकड़ी की एक अलमारी भी कमरे में घुसते ही बाएं जानब थी और अलमारी के निचले हिस्से में जूते रखने के लिए जगह बनी हुई थी। उसी के सामने दाएं जानब बाथरूम का दरवाज़ा था और मैंने उठकर उसका भी जायजा लिया। बाथरूम भी साफ सुथरा था और दरवाज़ा बंद करके मैं शहजाद के मुकाबल कुर्सी पर आ बैठी। कमरा नंबर तो जाहिर है कि तुम्हें याद रहेगा और कल दोपहर से ज़रा पहले आ जाना, साथ ही होटल के डाइनिंग रूम में खाना खाएंगे, मैंने शहजाद से कहा। तो इसका मतलब ये है कि मैं अब जाऊं? उसका लहजा मैंने खींचा। तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो बैठो। और मेरा ज़हन इस वक्त उलझा हुआ सा था और उसकी वजह वही मेरी हम नाम थी। ये तो मेरा घर नहीं खातून और ना यहाँ मेरी जवान भाई बहन है। उसके लहजे की मैनी खेदी बरकरार थी। तो फिर मेरी तेवरियों पर बल पड़ गए। आप इतनी संगदिल क्यों हैं? फजूल बातें ना करो। और वो एकदम उठकर खड़ा हुआ और फिर बोला, कल मेरा इंतज़ार ना कीजिएगा, मुमकिन है कि मैं ना आ सकूं। और उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे और चंपा ने उसे अपनी हवस का निशाना बनाकर मेरे हक में अच्छा नहीं किया था। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं उसे हकीकत से आगाह भी नहीं कर सकती थी और अगर मैं उसे ये बताती भी कि उसका पहलू गरमाने वाली मैं नहीं कोई और औरत थी तो वह कभी मेरी बात पर यकीन ना करता।
بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ کل تم کیوں نہیں آؤ گے۔ اور میرے لہجے میں سختی تھی۔ مجھے جانے دے خاتون، اور میرے ضبط کا مزید امتحان نہ لیں، اور میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں انسان ہوں، کھلونا نہیں، اور میں کہتی ہوں بیٹھ جاؤ، اور میں پہلے سے بھی سخت آواز میں بولی۔ اس مرتبہ وہ بیٹھ گیا اور منہ پھیر کر اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھنے لگا، اور پھر کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ خاتون یہاں دہلی میں آپ کو میری کوئی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب ہے اس سے تمہارا؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرے اوپر آپ کے بہت سے احسانات ہیں جو میں کوشش بھی کروں تو نہیں اتار سکتا۔ اس کی آواز اب تک بھرائی ہوئی تھی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کلکتے واپس جائیں گی اور آپ کو میری ضرورت ہوگی تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ دہلی آ کر مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی؟ اور آج ہی میں نے تمہارے سپرد ایک کام کیا ہے، وہ میں کر دوں گا۔ اس کے علاوہ بھی جس کام کے لیے کہیں گی انکار نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے آپ کا نمک کھایا ہے۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ ان سب باتوں سے مقصد کیا ہے تمہارا؟ آپ کی غلامی سے عارضی طور پر آزادی۔ وہ نظریں جھکا کر بولا، نہ میں آپ کے قریب رہوں گا اور نہ آپ کو پانے کی تمنا دل میں کروٹیں لے گی۔ آزادی نہیں مل سکتی، اور نہ عارضی طور پر نہ مستقل۔ آئندہ تمہاری زبان پر یہ بات نہیں آنا چاہیے، سمجھ گئے؟ اور ادھر نظریں اٹھا کر بات کرو۔ تمہیں ہر حال میں کل دوپہر کو آنا پڑے گا، میں انکار نہیں سنوں گی۔ تو آپ مجھے اپنی مرضی سے نہ جینے دیں گی، نہ زندگی سے مایوس ہونے دیں گی۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں اسی طرح تڑپتا رہوں اور قربت کے باوجود ہجر برداشت کروں۔ ہاں، میں جو چاہتی ہوں تمہیں وہی کرنا پڑے گا، اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہاں دہلی آنے کے باوجود تم بدستور میرے دستے راست ہو، اور تمہیں پابندی کے ساتھ جس طرح پہلے تمہاری خدمات کا صلہ ملتا رہا ہے آئندہ بھی ملتا رہے گا۔ اگر یہ آپ کا حکم ہے تو مجبوری ہے۔ وہ دھیرے سے بولا، یہ حکم نہیں، دوستانہ درخواست ہے۔ میں مسکرا دی، کیونکہ اس نے بہت دیر بعد مجھ سے نظریں ملا کر بات کی تھی۔ لیکن درخواست میں کوئی جبر نہیں ہوتا، یہ آپ بھی جانتی ہوں گی خاتون۔ کچھ لوگوں سے اسی طرح درخواست کی جاتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ تم بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل ہو۔ ٹھیک ہے، میں کل آپ کے حکم کے مطابق آ جاؤں گا۔ اور درخواست کے مطابق میں نے گویا تصحیح کی، اور ایک ہی بات ہے کہ آپ کی درخواست میرے لیے حکم ہی کا درجہ رکھتی ہے۔ اور یہ کیا کر اٹھ کر کھڑا ہوا، اور مجھے اجازت کھڑے ہو کر نہیں لی جاتی۔ بہرحال جاؤ، اور کل اس طرح سڑا ہوا منہ لے کر مت آنا، اور تم ہنستے مسکراتے اچھے لگتے ہو۔ وہ چلا گیا تو میں نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اور لباس تبدیل کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ رات کے 9 بج چکے تھے، اور دوپہر کو کچھ دیر سونے کے باوجود گزشتہ رات کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اور اس لیے میں جلدی سو جانا چاہتی تھی۔ اور بستر پر لیٹنے سے پہلے میں نے کمرے میں ہلکا نیلا بلب جلا دیا تھا، اور مجھے ابھی بستر پر لیٹے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ کمرے پر دروازے پر کسی نے دستک دی، اور میں چونک اٹھی، اور میں نے سوچا کہ شہزاد تو ابھی گیا ہے، پھر یہ کون ہو سکتا ہے؟ اور میں یہی سوچتی ہوئی اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک اجنبی شخص مجھے دھکا دیتا ہوا زبردستی کمرے میں آ گیا۔ اس کے سر پر ہیٹ تھا اور جسم پر سوٹ، اور اندر داخل ہوتے ہی اس نے حیرت انگیز تیزی سے مڑ کر اندر سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اور میں جب تک سنبھلتی وہ اپنی جیب سے چھوٹا سا خطرناک کھولنا نکال چکا تھا۔ اور تمہارا کھیل ختم ہو چکا رانی، وہ جیسے کسی وحشی درندے کی طرح گھرایا، اور ہیرے میرے حوالے کر دو۔ تم شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر اس کمرے میں گھس آئے ہو۔ اور میں نے پرسکون آواز میں کہا، تمہیں جس کی تلاش ہے میں وہ نہیں۔ کیا تم وکٹر کو کوئی بچہ سمجھ رہی ہو کہ تمہارے چہرے پر موجودہ میک اپ اور بدلی ہوئی آواز سے دھوکہ کھا جائے گا؟ اور سیدھی طرح ہیرے میرے حوالے کر دو، ورنہ میرے پاس دوسرا راستہ بھی ہے، اور میں تمہیں گولی مار کر تمہارے کمرے سے ہیرے برآمد کر کے لے جاؤں گا۔ مت بھولو رانی کہ یہ بمبئی نہیں دہلی ہے، اور یہاں میرا حکم چلتا ہے۔ مائی ڈیئر وکٹر، اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ میرے چہرے پر میک اپ نہیں تو پھر تمہیں میری بات پر یقین آ جائے گا۔ اور میری آواز اب بھی پرسکون تھی، اور میرے ریوالور کی نال تمہاری طرف اٹھی ہوئی ہے، جو کسی بھی لمحے میری انگلی کی خفیف سی حرکت پر تمہیں موت کی نیند سلا سکتی ہے۔ اس کے باوجود تم انتہائی پرسکون دکھائی دے رہی ہو، اور کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ میں صحیح کمرے میں آیا ہوں؟ تم اگر رانی نہ ہوتی تو کوئی اور معمولی عورت ہوتی، تو موت کو خود سے اس قدر قریب دیکھ کر
اب تک اپنے پیروں پر کھڑی نہ رہ پاتی، اور میں جانتا ہوں کہ تم اپنی عادت کے مطابق مجھے باتوں میں لگا کر بچنے کی کوئی تدبیر سوچ رہی ہو، مگر میں اس کا موقع نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے خطرناک انداز میں اپنے ریوالور کو حرکت دی اور گرایا۔ میں صرف 3 تک گنوں گا اور پھر تمہیں گولی مار دوں گا۔ اور پھر اس نے گنتی شروع کی۔ 1۔ ٹھہرو، میں ہاتھ اٹھا کر بولی، میں تمہیں ایک بات اور بتانا چاہتی ہوں اور پھر تم جو چاہو کرنا۔ اسی فلور پر کمرہ نمبر 111 میں میری ایک ہم نام بھی موجود ہے جو واقعی بمبئی سے آئی ہے اور یہاں مجھ سے پہلے ٹھہری ہوئی ہیں۔ میں تو یہاں آج کچھ دیر پہلے آئی ہوں اور میرا تعلق بمبئی سے نہیں کلکتے سے ہے۔ تم اگر کاؤنٹر پر بھی یہ معلوم کر لیتے تو تمہیں دھوکہ نہ ہوتا، اور بمبئی سے آنے والی رانی کے کمرے کا نمبر کیا ہے؟ اور جہاں تک تمہاری یہ دلیل ہے کہ میں رانی کی بجائے میری مراد بمبئی والی رانی سے ہے اور کوئی اور ہوتی تو خوف زدہ ہو جاتی، اور ضروری نہیں کہ ہر عورت بزدل ہی ہو۔ میں آخری بار تم سے کہہ رہی ہوں کہ ریوالور جیب میں رکھ لو، ورنہ نتائج کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ اور اس کے چہرے پر تذبذب کا اظہار ہونے لگا، اور میری بات نے یقیناً اس پر اثر کیا تھا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو، اگر تم واقعی رانی ہو اور تمہاری بات جھوٹ نکلی تو وقتی طور پر ہی صحیح مجھ سے بچ جاؤ گی، اور پھر میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ تم دہلی سے زندہ واپس نہیں جا سکو گی۔ اور کچھ دیر کے بعد اس نے مجھے مخاطب کیا، اور اس کی نظریں اب تک میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تمہیں دوبارہ اس کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ویسے میں تمہارے بارے میں اتنا ضرور جان چکی ہوں کہ تم زیادہ ذہین بہرحال نہیں ہو، ورنہ پورے یقین دہانی کے بغیر اس کمرے میں قدم نہیں رکھتے، اور اب تم جا سکتے ہو۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور جانے کے لیے مڑتے ہوئے کہا، جب تک میں اس کمرے سے نکل نہ جاؤں تم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرو گی، اور تم اگر بمبئی کی رانی نہیں بھی ہو تو تمہیں گولی مارتے ہوئے میں ذرا بھی نہیں جھجکوں گا۔ اور یہ کہتے ہی اس نے پوری طرح مڑ کر تیزی کے ساتھ دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی، اور بلا سبب میں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، اور مجھے ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ طویل عرصے سے میں جس عورت کا کردار ادا کر رہی تھی وہ دہلی میں ٹکرا جائے گی۔ اور چند ہی لمحے بعد میں اپنی جگہ سے آگے بڑھی، اور اب میں دروازہ بند کر کے سو جانا چاہتی تھی۔ پھر جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچی اور اچھل پڑی، اور میں نے گولی چلنے کی آواز سنی تھی، اور یہ آواز زیادہ دور سے نہیں آئی تھی، اور جواب میں پھر گولی چلی، اور میں نے کسی اور کو اپنے کمرے کے سامنے سے بھاگتے محسوس کیا، اور اس وقت دروازہ کھول کر باہر دیکھنا خطرناک تھا۔ تجسس کے باوجود میں نے یہ کوشش نہیں کی، اور دوسرے فائر کے بعد پھر کوئی اور فائر نہیں ہوا تھا، اور میں نے آہستگی سے دروازے کی چٹکنی لگا دی اور پھر بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اور یہ ہیروں کی چوری وغیرہ کا چکر تھا جس میں بمبئی کی رانی ملوث تھی، اور وکٹر شاید اس سے وہ ہیرے چھین لینا چاہتا تھا۔ ہوگا کچھ جہنم میں جائے، میں نے سوچا، اور سونے کی کوشش کرنے لگی، اور اچانک سرہانے تپائی پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی، اور میں نے ذرا سا اٹھ کر ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور ریسیور اٹھا کر میں نے کہا، ہیلو، اور تمہیں اس نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ دوسری جانب سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، تم بمبئی کی رانی بول رہی ہو؟ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ اس کے لہجے میں سختی آ گئی۔ نہیں، اسے میں نے یقین دلا دیا تھا کہ وہ غلط کمرے میں آ گیا ہے، میں نے بتا دیا۔ سنو، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، تم میرے کمرے میں آنا پسند کرو گی یا میں تمہارے کمرے میں آ جاؤں؟ لیکن تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تم کون ہو۔ تمہارا اندازہ قطعی درست ہے، اور میں وہی ہوں جو تم سمجھ رہی ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں میرے کمرے کا نمبر بھی معلوم ہے، اور اگر میں تم سے ملنا پسند نہ کروں تو؟ اور جواب میں اس کی ہنسی سنائی دی، اور پھر اس نے کہا، یہ تمہارے بس میں نہیں، اور تم نہ بھی چاہو تو تمہیں مجھ سے ملنا پڑے گا۔ کوئی زبردستی ہے؟ ایسا ہی سمجھ لو۔ ویسے تمہارے ہی فائدے کی بات تھی، اگر مجھے زبردستی کرنا پڑی تو تم فائدے سے محروم ہو جاؤ گی، اور میں بلا وجہ اس جرائم پیشہ عورت سے جھگڑا مول لینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بولی، ٹھیک ہے تم آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں، مگر یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تم سے ڈر گئی ہوں۔ مجھے کیا سمجھنا چاہیے کیا نہیں یہ میں تم سے بہتر جانتی ہو۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ سلسلہ منتقل ہو گیا۔ میں بستر سے اٹھی اور کم پاور کا نیلا بلب بجھا کر دوسرا بلب جلا دیا، اور ذرا ہی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، اور میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ آنے والے 2 افراد تھے، ان میں سے ایک عورت تھی اور دوسرا مرد۔ عورت کو بلا شبہ خوبصورت کہا جا سکتا تھا،
उसकी उम्र 25 और 30 साल के दरमियान मालूम होती थी। जिस्म मुतनासब और चेहरे के नकूश तीखे थे और रंग गोरा था। वो पैंट और शर्ट पहने हुए थी और उसके साथ जो मर्द था 50 साल से कम का नहीं लगता था। वो सुरमई सूट ज़ेबे तन किए हुए था और उसके जबड़े भारी और चेहरे पर करख्तगी थी। होंठ पतले और आंखें छोटी और मजमूई तौर पर वह सख्त गिर शख्स मालूम होता था। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़रें मुझसे मिली तो मैंने उसकी आंखों में अजीब सी चमक देखी। दरवाज़ा अंदर से उसी ने बंद किया और औरत का कद मुझसे कुछ निकलता हुआ था और मैं समझी थी कि वो अकेली आएगी, मगर अपने साथ एक मर्द को भी लाई थी और वो आगे बढ़कर बड़ी बेतकल्फ़ी के साथ एक कुर्सी पर बैठ गई, मगर मर्द उसकी कुर्सी के करीब ही खड़ा रहा और अखलाकन मैंने मर्द से कहा, आप भी बैठ जाओ। नहीं, मेरा जुमला पूरा होने से पहले वो औरत बोल उठी, रानी के सामने बैठने की जुर्अत इसमें नहीं और ना ये इस इजाज़त है, और बेहतर यह है कि लड़की तुम भी खड़ी होकर ही बात करो। और औरत के लहजे में गरूर था। हरगिज़ नहीं, मुझे उसकी बदतमीज़ी पर गुस्सा आ गया। मैं तुम्हारी ज़र खरीद नहीं हूँ कि तुम्हारे सामने हाथ बांधे खड़ी रहूँ, और अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतनी बदतमीज़ औरत हो तो हरगिज़ तुम्हें अपने कमरे में आने की इजाज़त ना देती। ये कहकर मैं आगे बढ़ी और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और मेरे और उसके दरमियान अब सिर्फ मेज़ थी। मेरे बैठते ही वो एकदम उछल कर खड़ी हो गई। तेरी ये हिम्मत! वो चीख उठी और फिर उसने तेज़ी से झपट कर मेरे सर के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए और झटका देकर घुर्राई, खड़ी हो जा। मैं खड़ी तो हो गई, मगर मेरा खड़ा होना उसे बहुत महंगा पड़ा। मैंने उसके पहलू पर ज़ोरदार ज़रब लगाई और उसने चीख कर मेरे बारूद छोड़ दिए थे। अपने हाथ उठा ले लड़की, वरना फूंक दूंगा। मुझे मर्द की करख्त आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसके हाथ में रिवाल्वर देखा और वह मुझसे ज़्यादा दूर नहीं था और मैंने उछल कर उसकी कलाई पर ठोकर मारी। उसी के साथ रिवाल्वर उसके हाथ से छूटकर फिजा में उछला और मैंने लपक कर उसे गिरने से पहले कैच कर लिया और फिर मैंने तेज़ी से पीछे हटकर उन दोनों को निशाने पर रख लिया। ज़रब खाकर औरत दोहरी हो गई थी और इस दौरान में वो संभल कर फिर सीधी खड़ी हो गई और अब वो हैरत से मेरी तरफ देख रही थी। कौन हो तुम? औरत मुझसे मुखातब हो गई। रानी, अगर तुम चाहो तो मुझे बम्बई की रानी भी कह सकती हो। मैं हंस दी, क्योंकि तुम जैसी चूहिया बम्बई की रानी नहीं हो सकती। लड़की, तुमने खुद को इसका अहल साबित कर दिया है कि मेरे सामने बैठ सको, और रिवाल्वर डेविड को वापस कर दो। मैं तुमसे सुलह करना चाहती हूँ और तुम मुझे काम की मालूम होती हो। मैंने रिवाल्वर की गोलियां निकाल कर एक तरफ फेंक दी और फिर रिवाल्वर डेविड की तरफ उछाल दिया। डेविड ने रिवाल्वर लपक कर जेब में रख लिया और मैं आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गई। औरत ने भी बैठने में देर नहीं की थी और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतनी फुर्तीली और बहादुर साबित होगी। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया और मैंने उसके हाथ मिलाया और फिर बोली, ये हीरो का क्या चक्कर है? और मेरा सवाल सुनकर वह चौंक उठी और फिर तवील सांस लेकर कहा, तो तुम्हें भी मालूम हो गया। वहाँ विक्टर मुझसे हीरो ही का मुतालबा कर रहा था। वो समझ रहा था कि शायद मेरे चेहरे पर मेकअप है और मैं आवाज़ बदल कर बोल रही हूँ। उसने हंगारा भरा और फिर बताने लगी, इन हीरों का ताल्लुक एक हिंदुस्तानी रियासत से है। जिस रियासत के नवाब के वो हीरे हैं, उसकी एक कोठी यहाँ दिल्ली में भी है और अय्याश नवाब अपने ख़ानदानी हीरे बेचने के लिए यहाँ साथ लाया था और मैं उन हीरों को हासिल करना चाहती थी जिनकी मालियत 20 लाख के से ज़्यादा है और मेरा तरीक़ेकार ज़रा मुख्तलिफ है। मैं अमूमन अपने शिकार पर बराह रास्त हाथ डालने से गुरेज करती हूँ और उसकी बड़ी वजह यह भी है कि मैं अपने साथ सिर्फ चंद अफराद को रखती हूँ और मैंने उसी सबब विक्टर को अपने एक आदमी के ज़रिए हीरों के मतलब तमाम ज़रूरी मालूमात फराहम कर दी और फिर जब विक्टर हीरे चुराने में कामयाब हो गया तो मैंने उससे हीरे छीन लिए और वह दिल्ली का एक बड़ा ग्रोह बदमाश है और अब वह मुझसे दोबारा हिस्से हीरे हासिल करना चाहता है। उसने तफसील के साथ मुझे सब कुछ बता दिया। फिर तुम यहाँ से फ़रार क्यों नहीं हो जाती? हीरे तो तुम्हारे कब्ज़े में आ ही चुके हैं। वो हीरे असली नहीं, उसने इंकशाफ किया। क्या मतलब? और फिर असली हीरे कहाँ है? मैं चौंक कर बोली, कियास यही है कि नवाब ने असली हीरे चोरी की खातिर वजह से अपनी कोठी में नहीं रखे होंगे और क्या खबर कि नवाब के असली हीरे अपने साथ ही ना लेकर आया हो। और मैंने कियास आराई की, नहीं, ये तस्दीक हो चुकी है कि वो हीरे साथ ही लेकर आया था और अमकान है कि नवाब ने वो आने के बाद असली हीरे अपने किसी करीबी दोस्त के पास रखवा दिए
उसी सिलसिले में मेरे 2 आदमी ज़रूरी मालूमात हासिल कर रहे हैं और पता चला है कि दिल्ली में नवाब की 2 रखेल भी हैं और मुमकिन है नवाब ने उनमें से किसी को हीरे दे दिए हों। बहरहाल नवाब के दोस्तों की फहरिस्त भी तवील है और ज़रूरी बात हासिल करने में कुछ वक्त लगेगा। तो फिर तुम नकली हीरे विक्टर के हवाले क्यों नहीं कर देती? इस तरह विक्टर से तुम्हारी जान छूट जाएगी। मैंने उसे मशवरा दिया, सिर्फ वक्ती तौर पर। फिर जब विक्टर को हकीकत का इल्म होगा तो वह यही समझेगा कि मैंने असल हीरे गायब करके नकली हीरे उसके हवाले कर दिए। तुम अपने असल नाम से इस होटल में क्यों ठहरी हो? और इस तरह तो तुम्हारा दुश्मन बआसानी तुम्हें तलाश कर सकता है। और मैं अगर फर्जी नाम से भी किसी होटल में ठहरी होती तो विक्टर मुझे तलाश कर ही लेता, लेकिन चेहरे की तब्दीली के बाद तो तलाश करना आसान ना होगा। क्या मतलब? मेरा मतलब मेकअप से था। मैंने बताया, मुझे मालूम तो है कि मेकअप के ज़रिए चेहरा तब्दील किया जाता है, मगर ये फ़न मुझे नहीं आता और ना मैं ऐसे किसी आदमी से वाकिफ़ हूँ जो इस फ़न में ताक हो। उसने साफ गोई से इतराफ़ कर लिया, और अगर मेरे लिए ये मुमकिन होता तो यकीनन ऐसा ही करती, और फिर शायद मुझे विक्टर की तरफ से कोई ख़तरा ना होता और तुम्हारा ये मसला मैं हल कर सकती हूँ। मैं मुस्कुराई। नहीं, उसे जैसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया। सुनो, आज ही रात बम्बई की रानी ये होटल छोड़कर चली जाएगी और फिर चेहरे की तब्दीली के बाद दोबारा इसी होटल में कोई कमरा हासिल करके रहने लगेगी। क्या ऐसा मुमकिन है? उसकी आवाज़ शिद्दत जज्बात से काँप रही थी। बिल्कुल मुमकिन है, मैंने उसे यकीन दिलाया। लेकिन पहले ये बताओ कि तुम किस लिए मुझसे मिलने आई थी? मैं तुम्हें बतौर चारा इस्तेमाल करना चाहती थी, यानी मैं तुम्हें रकम का लालच देकर या ज़बरदस्ती डरा धमका कर कमरा बदलने पर मजबूर करती और तुम ये रात मेरे कमरे में गुजार दो और मैं यहाँ रहूँ। उसने जवाब दिया, वो किस लिए? इस तरह के मैं विक्टर को ठिकाने लगाना चाहती थी और मुझे यकीन है कि वो खामोश नहीं बैठेगा और आज किसी भी वक्त मुझ पर दोबारा हमला करेगा। और मेरा मंसूबा ये है कि जब वो मेरे कमरे पर यलगार करता तो मैं उसके पीछे से उसे भून कर रख देती, और इस वक्त भी मैं अपने कमरे में नहीं, डेविड के कमरे में थी, और हमारे कमरे में उस दाखिल होते और फिर कुछ देर बाद निकलते हुए देख लिया था, और वहाँ से वो मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि मैंने उस पर गोली चला दी, और वो यकीनन बुलेट प्रूफ पहने हुए था, इसलिए बच गया, और वरना मेरा निशाना बहुत सच्चा है। अगर बुलेट प्रूफ जैकेट उसके जिस्म पर ना होती तो मेरी चलाई हुई गोली उसके दिल में उतर चुकी थी, और सर पर भी वो इसीलिए हर वक्त हैट पहने रहता है, और हैट भी बुलेट प्रूफ है। लेकिन तुम उसके चेहरे पर गोली मारती तो यकीनन वो ना बच पाता, और जवाब में उसने भी चलाई हुई होगी, और क्योंकि मैंने 2 गोलियां चलने की आवाज़ सुनी थी। हाँ, उसने भी एक जवाबी फायर किया था। हैरत है कि होटल की इंतज़ामिया ने गोली चलने के बावजूद किसी किस्म की तफ्तीश नहीं की, और भाग दौड़ तो की है उन लोगों ने, मगर जिन कमरों में नीले बल्ब जल रहे थे उनके मुसाफिरों को उन्हें जगाकर पूछ-गुछ नहीं की, और तुम्हारे कमरे में भी शायद नीला बल्ब जल रहा होगा और शायद इसी वजह से तुम्हें नहीं जगाया। मगर दरवाज़ा अंदर से बंद होने की सूरत में उन लोगों को किस तरह मालूम हो सकता है कि कमरे में कौन सा बल्ब जल रहा है? मैंने सवाल किया। बहुत आसान है, राहदारी की लाइट बंद करके बाआसानी ये मालूम किया जा सकता है। उन्होंने ही किया था, क्योंकि जब मैं डेविड के कमरे से अपने कमरे में जा रही थी तो लोग राहदारी में खड़े थे और वहाँ लाइट नहीं थी और उनके हाथों में टार्चें थीं, और मैं समझ गई कि बाहर अंधेरा होने की सूरत में दरवाजे के निचले हिस्से की झुर्री से निकलती रोशनी को देखकर होटल वालों के लिए जानना मुश्किल नहीं रहा होगा कि किस कमरे में नीला बल्ब जल रहा है, और मुझसे गालबन इसलिए पूछ-गुछ नहीं की गई। वो एक जराइम पेशा औरत थी, और उसके बावजूद मैं शायद उससे एक ताल्लुक़ के सबब उसके काम करने पर आमादा हो गई, और मैंने उसके चेहरे पर मेकअप करने का वादा कर लिया था। और इसके बाद अपने साथी को लेकर वह चली गई, और उसने मेरी तजवीज़ पर अमल करने का फ़ैसला कर लिया। रानी की हैसियत से होटल छोड़ रही थी, और उस वक़्त रात के 10 बजने वाले थे। रानी ने 10:30 और 11 बजे से तनहा मिलने का वादा किया, और डेविड बदस्तूर अपने कमरे में रहता। रानी ने उसके होटल छोड़ने या चेहरे की तब्दीली की ज़रूरत नहीं समझी थी, और मौजूदा सूरत हाल में मेरे लिए सिर्फ इतना फ़र्क पड़ा कि मैं वो सो नहीं सकी थी। वादे के मुताबिक रानी ठीक 10 बजे मेरे कमरे में पहुंच गई, और मैं उसकी आमद से पहले मेकअप बक्स निकाल चुकी थी।
बुढ़िया बनोगी या जवान? मैंने रानी से मुस्कुरा कर पूछा और मेकअप बस खोलने लगी। जो चाहो बना दो, अब तो तुम्हारे काबू में हूँ, उसने हंसकर जवाब दिया। और तुम बदसूरत बुढ़िया अच्छी नहीं लगोगी, इसलिए तुम्हें मज़ीद खूबसूरत और जवान बनाए देती हूँ। हाँ, तुम पैंट शर्ट नहीं पहनोगी। वो क्यों? इसलिए कि मुझे एक तरह से ये भी तुम्हारी पहचान ही मालूम होती है कि तुम कोई साड़ी पहन लेना, मैंने मशवरा दिया। मगर पैंट शर्ट के सिवा तो मेरे पास कोई और लिबास है ही नहीं, और साड़ी में भी मैंने कभी पहनी ही नहीं, ना बांधना आती है। चलो तुम्हारी खातर एक साड़ी की कुर्बानी ही सही, मैं हंस पड़ी, मगर सिर्फ कल तक के लिए उधार दूंगी, और कल तुम बाजार से 2-1 साड़ियाँ खरीद लेना, ब्लाउज और पेटीकोट। वो सिलने को दे देना अर्जेंट, और जब तुम्हारे ब्लाउज और पेटीकोट सिलकर आ जाएं तो मेरे वापस कर देना। फिर मैं उसके चेहरे पर तवा आजमाई करने लगी, और जिसमें मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि मैंने जो इस्तेमाल किया था जिससे सुनहरे बालों की एक विग भी मुंसलिक थी, और उस मेकअप के बाद रानी की 18-20 साल से ज़्यादा नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर आखिरी तनकीदी नज़र डालकर मैंने आईना थमा दिया। हैरत अंगेज़ वो खुशी से तकरीबन चीख उठी, तुम तो जादूगरनी हो। और मैं उठ खड़ी हुई और अपना सूट केस खोल कर एक साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट निकाल कर उसे दे दिया, और बाथरूम में जाओ और पेटीकोट ब्लाउज पहनकर बाहर आ जाओ, और साड़ी मैं बांधना सिखा दूंगी। और रानी पेटीकोट और ब्लाउज लेकर बाथरूम में घुस गई, और निकली तो पेटीकोट और ब्लाउज पहने हुए थी, और मैंने प्याजी रंग की साड़ी बांध दी। उसी रोज़ ये दूसरा मौका था कि मैं किसी को साड़ी बांधना सिखा रही थी। ब्लाउज कुछ तंग था, मगर वक्ती तौर पर काम चल गया, और 2-4 मरतबा की कोशिश में उसने साड़ी बांधनी भी सीख ली। ये तो बड़ा झंझट है, इसे बांध कर तो ज़रूरत पड़ने पर ठीक तरह से हाथ पैर भी नहीं हिलाए जा सकते, वो आखिरी मरतबा साड़ी बांधते हुए बोली। ख्याल है तुम्हारा, तुमने मुझे नहीं देखा कि किस तरह हाथ पैर चलाकर तुम्हें और डेविड को बेबस कर दिया था। तुम्हें आदत हो गई होगी, और तुम्हें भी आदत हो जाएगी। इसमें एक और मसला भी है कि बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी जा सकती, जो शर्ट के नीचे पहनना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या इस वक्त भी तुम बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हो? हाँ, ये रही। उसने जैकेट उठाकर मुझे दिखाई, और पहली बार मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट देखी, और उससे बोली, तुम्हारे पास और कोई जैकेट ऐसी है? हाँ, एक है तो सही, क्यों? तुम बतौर तोहफा ये मुझे दे दो, साड़ी तुम्हारी। मैं मुस्कुराई। ले लो, फिर भी साड़ी कल वापस कर दूंगी, और जैकेट को साड़ी का किराया समझ लो। ये कहकर वो चलने लगी। और तुम्हें मालूम है रानी, तुम बहुत दूर दूर तक मशहूर हो। मैंने कलकत्ते में तुम्हारा नाम सुना था, मैंने उसे बताया। हाँ, मुझे खबर है कि मैं बहुत बदनाम हूँ, वो दस्तूर हंसने हुए कहने लगी, और मैं कलकत्ते भी जा चुकी हूँ। अब जाओगी तो तुम्हें अपने बारे में एक नई बात मालूम होगी। वो क्या भाई? उसने मेरी बात में दिलचस्पी लेते हुए सवाल किया, और फिर मैंने उसे बता ही दिया कि कलकत्ते में उसका किरदार अदा कर चुकी हूँ, और ये किरदार अदा करने पर मेरे इरादे को कोई दखल नहीं था। लेकिन तुम रानी नहीं हो तो फिर कौन हो? वो हैरान होकर बोली। ये एक ऐसी राज की बात है जो सिर्फ चंद लोगों को मालूम है। क्या उन चंद लोगों में मैं शामिल नहीं हो सकती? इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हें, और मैंने अगर तुम्हें अपना नाम बता भी दिया तो अपने बारे में और नहीं बता सकूंगी। और इतनी राजदारी की वजह, उसकी एक वजह यह भी है कि खुद मैं भी अपने बारे में ज़्यादा नहीं जानती। तुम बहुत अजीब और पुरअसरार हो। बहरहाल तुमसे दोस्ती करके मुझे खुशी हुई, और तुम्हारे मतलब मैं अंदाज़ा तो खैर मैं लगा चुकी हूँ कि तुम यकीनन बहुत पहुँची हुई हो। अच्छा, अब तुम मुझसे ये मास्क उतारना और पहनना भी सीख लो कि मेरी मोहताज ना रहो। और फिर मैंने बड़े एहतियात के साथ मास्क और विग उतारना और पहनना सिखाने लगी, और मैंने आज तक किसी को अपना उस्ताद तस्लीम नहीं किया, मगर तुम्हें अपना उस्ताद मान लेती हूँ। ना भी मानती तो मुझे मेरा क्या बिगाड़ लेती? मैं हंसी, और वो भी मेरा साथ देने लगी, और उसके मैंने कहा कि तुम जिस कमरे में ठहरो मुझे कल सुबह बता देना, और मैं तुम्हें आज ही फ़ोन करके बता दूंगी। और मेरी कोशिश होगी कि उसी फ्लोर पर कोई रूम मिल जाए, क्योंकि डेविड भी उसी फ्लोर पर है और तुम भी यहीं हो। और ये कहकर वो उठकर खड़ी हो गई। रानी चली गई तो मैंने दरवाज़ा बंद करने के बाद बुलेट प्रूफ जैकेट संभाल कर अपने एक सूट केस में रख दी, और रानी से दोस्ती मेरे लिए सूदमंद ही साबित हुई। और मेरे वहमो गुमान में भी आज से पहले ये बात नहीं थी कि कलकत्ते में तवील अरसा मैंने जिस जुराम पेशा औरत का किरदार अदा किया वो कभी मेरी दोस्त भी बन जाएगी।
नीला बल्ब जलाकर मैं सोने के लिए लेट गई और मुझे अब रानी के फ़ोन ही का इंतज़ार था और उसने फ़ोन करके कमरे का नंबर बताने को कहा था। वो फ़ोन करती तो दोबारा मेरी आंख खुल जाती, इसलिए मैंने सोने से फ़िलहाल गुरेज कर रही थी। और कुछ ही देर के बाद रानी का फ़ोन आ गया। उसने मेरे बराबर वाला कमरा ही बुक करा लिया था और कमरा नंबर 116 था और नया फर्दी नाम कमल। मालूम नहीं वो रात का कौन सा पहर था कि जब सोते सोते पे दर पे कई धमाकों से मेरी आंख खुल गई और फिर फायरिंग का सिलसिला कुछ देर जारी रहा और यूं लग रहा था जैसे 2 जानब से फायरिंग की जा रही हो। और तकरीबन 5 मिनट के बाद हर तरफ सन्नाटा छा गया और ज़रा तवक्कुफ के बाद मैं उठी और टेलीफोन का रिसीवर थाम कर ऑपरेटर से कमरा नंबर 116 से राब्ता कायम करने को कहा। दूसरी जानब मुसलसल घंटी बजती रही मगर किसी ने रिसीवर नहीं उठाया। रानी यकीनन अपने कमरे में नहीं थी और वो कहाँ जा सकती है। और फिर मेरे ज़हन में ये अंदेशे पैदा होने लगे कि कहीं रानी को फायरिंग में कोई नुकसान तो नहीं पहुंच गया और अगर वह ज़ख्मी हो जाती तो ज़ाहिर है उसे अस्पताल भेज दिया जाता। और ये तो तय था कि जो फायरिंग हुई थी उसका ताल्लुक रानी और विक्टर ही से था और रानी मुझे बता चुकी थी कि विक्टर आज रात ज़रूर दोबारा हमला करेगा। और मुझे हैरत इस बात पर थी कि जब रानी अपना कमरा छोड़ चुकी थी और उसकी शख्सियत भी बदल गई तो फिर विक्टर ने उसे किस तरह तलाश कर लिया और कमरे में रानी की गैर मौजूदगी यही ज़ाहिर कर रही थी कि वो हालिया हंगामे में मुलव्वस रही थी। कुछ ही देर के बाद मुझे राहदारी में गैर मामूली नकलो हरकत सुनाई देने लगी और जैसे वो लोग आ जा रहे हों और मैं बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक टेलीफोन की घंटी बजने लगी और मैंने वापस जाकर रिसीवर उठा लिया। तुम जाग रही हो? ये रानी की आवाज़ थी। हाँ, मगर तुम कहाँ थी? मैंने कुछ देर पहले तुम्हें फ़ोन किया था और मैं कमरे में नहीं थी। विक्टर ही था वो और मैंने तफसील से दानिस्ता गुरेज किया। हाँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया और फिर बोली, बाहर आ जाओ फिर बात करेंगे। क्या बाहर? लग रहा है कि बहुत से लोग जमा होंगे। तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है, बाहर पुलिस आ चुकी है। अच्छा, मैं आ रही हूँ, ये कहकर मैंने रिसीवर रख दिया। मैं अपने कमरे के दरवाजे से निकली तो राहदारी में बहुत से लोगों को देखा और उनमें वहाँ क़याम करने वाले भी थे और होटल से मुतल्लक अफराद भी और पुलिस वाले भी। और कमरा नंबर 111 के मुकाबल वाला कमरा था और ज़्यादा लोग उसी के सामने जमा थे। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था जिसके सामने 2 पुलिस वाले मुस्तैद खड़े थे और लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। मैं एक तरफ मतवज्जा थी और कमरा नंबर 116 का दरवाज़ा खुला और रानी साड़ी संभालती हुई बाहर निकलती दिखाई दी और मेरे करीब ही आकर खड़ी हो गई और मुझसे मुखातब हुई। हेलो रानी, कैसी हो कमल? मैंने उसे फर्दी नाम से पुकारा। ठीक हूँ, वो मुस्कुराई। आओ उस तरफ चलते हैं, उसने एक जानब इशारा किया और मैं उसके साथ आगे बढ़ गई। वहाँ आसपास कोई नहीं था और मैंने मौका गनीमत जानकर अपने तजस्सुस के सबब उससे धीमी आवाज़ में पूछा, हाँ अब बताओ क्या हुआ था? तवक्का के मुताबिक विक्टर ही ने हमला किया, रानी बताने लगी। वो शायद नीचे से ये मालूम कर चुका था कि मैं होटल छोड़कर जा चुकी हूँ और उसका अंदाज़ा मैंने इस तरह लगाया कि विक्टर ने कमरा नंबर 111 का रुख नहीं किया। मैं इसी इंतज़ार में जाग रही थी और मैंने देखा कि उसने डेविड के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और डेविड ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसकी आदमी ने दरवाजे पर गोलियां बरसा दी। और विक्टर इस मर्तबा अकेला नहीं था, उसके कई आदमी थे और मैं अपने दरवाजे की जड़ी से ये सब कुछ देख रही थी। विक्टर यकीनन डेविड से मेरे बारे में मालूमात हासिल करना चाहता होगा और इसीलिए, और तुम्हें भी तो पहले ही से अंदाज़ा होगा कि विक्टर डेविड तक भी पहुंच सकता है। मैं बोल उठी, और तुम उसके चेहरे पर भी मुझे मेकअप करा सकती थी। अगर मैं ऐसा करती तो फिर डेविड को चारे के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकती। बहरहाल मुझे अफसोस है कि वो मारा गया। क्या डेविड को तुमने बताया था कि उसी होटल के इस फ्लोर पर तुम्हारा कमरा नंबर क्या है और किस नए नाम से ठहरी हो? मैंने दरियाफ्त किया। तुम मुझे पागल समझती हो क्या? क्यों, इसमें भला पागल समझने की क्या बात है? देखो, आदमी बहरहाल आदमी होता है और अपनी जान बचाने के लिए वो दूसरों की जान दांव पर लगाने से ग्रेज नहीं करता। और मुझे मालूम था कि जब विक्टर को पता चलेगा कि मैं होटल छोड़कर जा चुकी हूँ तो वो डेविड की ज़ुबान खुलवाने की कोशिश ज़रूर करेगा। और ये जानने के बावजूद भी कि अगर डेविड को अपना नया कमरा नंबर और नया फर्जी नाम बता देती तो ये मेरा पागलपन ही होता। खैर, तो ये बता रही थी कि विक्टर को डेविड के कमरे का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हुए तुम देख रही थी और फिर मैंने बकिया तफसील जानना चाही।
یہ دیکھ کر میں نے اس پر فائر کھول دیا اور اس وقت تک اس کے آدمی ڈیوڈ کے کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو چکے تھے اور پیچھے سے ان پر فائر ہوا تو انہوں نے بھی جوابی فائرنگ کی اور ڈیوڈ کے کمرے میں گھس کر وہ مجھ پر فائر کر رہے تھے اور زخمی وکٹر کو انہوں نے کمرے کے اندر گھسیٹ لیا اور میں نے گولی کھا کر اسے گرتے دیکھا تھا اور میری چلائی ہوئی گولی اس کی دائیں پنڈلی میں لگی اور میں نے اسے گرانے کے لیے پنڈلی ہی کا نشانہ لیا تھا اور وہ کچھ اس طرح اپنے آدمیوں کے درمیان کھڑا تھا کہ اس کی گردن یا چہرے کا نشانہ نہیں لے سکی۔ بہرحال مجھے یہ رنج ہے کہ وکٹر کو قتل نہیں کیا سکی اور پھر میں نے ڈیوڈ کی چیخ سنی اور اندازہ ہے کہ انہوں نے ڈیوڈ سے میرے متعلق پوچھا ہوگا اور کچھ نامعلوم ہونے کی وجہ سے اسے گولی مار دی ہوگی اور اس کے بعد وہ رکے نہیں تھے اور فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ گئے اور میں نے انہیں ڈیوڈ کے کمرے سے نکلتے دیکھ کر ہی اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور مجھے خطرہ تھا کہ وہ زیادہ تعداد میں ہونے کا فائدہ اٹھا کر کہیں بھرا مار کر میرے کمرے میں نہ آ گھسیں اور پھر تو انہوں نے یقیناً یہ دیکھ لیا ہوگا کہ ان پر کس کمرے سے فائرنگ کی گئی۔ ظاہر ہے کہ ہر کمرے کے دروازے پر پیتل کے نمبر موجود ہیں اور تم جس خطرے کی طرف اشارہ کر رہی ہو اور اس کے متعلق میں پہلے ہی سوچ چکی تھی۔ پولیس چلی جائے تو میں کمرہ تبدیل کر لوں گی اور میں اس سلسلے میں ہوٹل کے مینیجر سے بات کر چکی ہوں اور میرا خیال ہے کہ ہم دونوں دوسری منزل پر کمرے بک کرائے لیتے ہیں اور موجودہ حالت میں تمہارا بھی یہاں رہنا مجھے مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اور کیا کہتی ہو؟ اس نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں بھی اگر نام اور چہرہ تبدیل کر لوں تو کیسا رہے، کیونکہ وکٹر مجھے دیکھ چکا ہے اور پھر یہ کمرہ تبدیل کرنے کے باوجود نام تو بہرحال مجھے یہی لکھانا پڑے گا اور پھر میرے اور رانی کے درمیان یہی طے ہوا کہ ہم دونوں ہی اپنے اپنے کمرے چھوڑ کر دوسری منزل پر کمرہ بک کرا لیں گے۔ اور اس وقت ہوٹل میں افراتفری مچی ہوئی تھی اور میں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اپنے کمرے میں آ کر چہرے پر ماسک چڑھا لیا اور وگ بھی لگا لی اور پھر میں بہت تیزی کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور سوٹ کیس اٹھائے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ اس وقت کاؤنٹر پر کوئی موجود نہیں تھا اور میں اسی لیے سامنے پڑے ہوئے صوفوں پر بیٹھ گئی۔ ذرا ہی دیر کے بعد اوپر سے پولیس والے ڈیوڈ کی لاش لے کر اترے اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گئے اور لاش ایک سٹریچر پر تھی۔ ضروری کھانا پوری شاید وہ پہلے ہی کر چکے تھے اور کاؤنٹر اب خالی نہیں تھا اور میں اپنا سوٹ کیس وہیں چھوڑ کر کاؤنٹر پر پہنچی اور میں نے اپنا نیا نام ساوتری بتایا اور دوسری منزل پر کمرہ نمبر 202 مجھے مل گیا اور میں نے خود ہی دوسری منزل پر کمرہ لینے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور میں ابھی کاؤنٹر سے ہٹی نہیں تھی کہ کنول یعنی رانی وہاں آ گئی۔ پلیز کسی پورٹر کا بندوبست کر دیجئے جو میرا سامان کمرے تک پہنچا دے۔ اور میں نے کاؤنٹر مین کو دانستہ مخاطب کیا تاکہ رانی میری آواز سن کر مجھے پہچان لے اور پھر میں نے رانی کو اپنا کمرہ نمبر بتانے کی خاطر چابی کی طرف دیکھتے ہوئے خود کلامی کیسے انداز میں کہا کہ 202 اور جی ہاں آپ کے کمرے کا نمبر یہی ہے مس ساوتری، آپ تشریف رکھیے، میں ابھی پورٹر کو بلاتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے کوئی بٹن دبایا اور پھر رانی سے مخاطب ہوا جی، اور میں نے کمرہ تبدیل کرنے کے لیے آپ کے مینیجر صاحب سے بات کر لی ہے، رانی کہنے لگی، اور میں فرسٹ فلور پر روم نمبر 116، جی وہ مجھے بتا چکے ہیں، جسٹ اے منٹ۔ اور اس نے اپنے سامنے رکھا ہوا رجسٹر کھول لیا اور میں سامنے والے صوفے پر جا بیٹھی اور رانی کو مجھے بتانا تھا بتا چکی تھی۔ پورٹر آ گیا تو اسے کاؤنٹر مین نے میرے پاس بھیج دیا اور میں اس کے ساتھ دوسری منزل پر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج کی رات بھی خلاف توقع سکون سے نہیں گزری اور دہلی میں یہ میری دوسری ہنگامہ خیز رات تھی اور مجھے معلوم تھا کہ رانی کچھ ہی دیر کے بعد مجھ سے رابطہ قائم کر کے اپنا نیا کمرہ نمبر ضرور بتائے گی اور اس کے لیے مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا اور وہ فون کرنے کے بجائے خود ہی چلی آئی۔ ایک بار پھر میں تیری پڑوسن بن چکی ہوں مس رانی عرف ساوتری۔ اور وہ کمرے میں داخل ہو کر ہنستے ہوئے بتانے لگی اور میرے کمرے کا نمبر اب 203 ہے۔ اور میں نے دروازہ بند کرنا چاہا تو اس نے روک دیا اور میں اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کھلا رہنے دو کیونکہ میں کافی کا آرڈر دے کر آئی ہوں اور خواہ مخواہ تمہیں اٹھ کر ویٹر کے لیے دروازہ کھولنا پڑے گا۔ اس نے دروازہ نہ بند کرنے کی وجہ بتائی اور پھر آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اپنا کمرہ نمبر بتانے کا شکریہ۔ اور وہ مسکرائی اور میں اسی لیے چلی آئی تھی کہ کچھ دیر تم سے گپ شپ کرا لوں گی۔ اچھا کیا اور میں نے اخلاقاً کہہ دیا، ورنہ تو میرا ارادہ سونے کا تھا۔ تم کلکتے سے کب آئیں؟ اس نے سوال کیا۔ کل آئی تھی
और फिर कल से अब तक मेरा मतलब है कि उस होटल में आने से पहले कहाँ रहीं, और पुरानी दिल्ली में एक जगह मैंने बता दिया कि उसमें कोई हर्ज नहीं, और वहाँ कलकत्ते में क्या करती थी। अगर मैं सवाल का जवाब दे दूँ तो तुम अगला सवाल ये करोगे कि मैं यहाँ दिल्ली क्यों आई थी। चलो यही सही, दोनों सवालों का जवाब एक साथ ही दे दो। वो मुस्कुराई। मैं दोनों सवालों में से किसी एक का भी जवाब नहीं दूंगी। वो क्यों? इसलिए कि उन दोनों बातों का ताल्लुक मेरी ज़ात के असरार से है। और अच्छा यही बता दो कि तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है, तो मंगाल की तो नहीं लगती। और उसी वक्त कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, दरवाज़ा खुला हुआ है, आ जाओ। आने वाला तवक्का के मुताबिक वेटर ही था और वो एक ट्रे में कॉफ़ी के मग रख गया। बर्तन सुबह ले जाना, हाँ बिल चाहो तो अभी ले जा सकते हो। तो मैंने वेटर को बिल अदा कर दिया। हाँ तो मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारा ताल्लुक, तुम्हें मेरे मुतल्लक कुछ जानने की इतनी दिलचस्पी क्यों है? और मैं उसकी बात काट कर बोली और कॉफ़ी का मग उठा लिया। मैं दरअसल ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने शरीके कार या यूं कह लो कि बिजनेस पार्टनर बनाया जा सकता है या नहीं। उसने साफ गोई से बता दिया। रानी, अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात है तो तुम्हें मायूसी होगी। क्यों? क्या तुम बिल्कुल तन्हा काम करने की आदी हो? उसने कॉफ़ी का मग उठाकर एक घोंट लिया। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारी हम पेशा नहीं हूँ। तुम्हारी इस बात पर भी मुझे यकीन नहीं आया और वजह तुम समझ सकती हो। तुम बहरहाल कोई मामूली औरत नहीं हो। हाँ, तुम्हारी दूसरी बात किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है, लेकिन उसका सबब मेरे जुराम पेशा होना नहीं। तुम मुझे ये भी बता चुकी हो कि कलकत्ते में बम्बई की रानी भी बन चुकी हो, और अगर तुम मेरी हम पेशा नहीं तो तुम्हें उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? और मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि खुद मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मुझे अपनी असली शख्सियत पर पर्दा डालने के लिए किसी नाम की ज़रूरत नहीं। और फिर एक जुराम पेशा शख्स ने खुद ही मुझे बम्बई की रानी समझ लिया और मैंने इनकार नहीं किया, और उसे तुम मेरी मजबूरी या महज मेरे हालात का तकाजा भी समझ सकती हो। तो इसका मतलब यह है कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी? कतई नहीं, मैंने वादे तौर पर इनकार कर दिया। और अगर मुझे किसी सिलसिले में तुम्हारी मदद की ज़रूरत पेश आई तो क्या मेरी मदद करोगी? इसका ताल्लुक मदद की नौइयत से है, और मैं तुम्हारी किसी भी मुजरमाना सरगर्मी में तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। और अगर मैं हीरों के सिलसिले में तुम्हारी मदद चाहूं और आधे हीरे यानी तकरीबन 10 लाख रुपए के हीरे तुम्हें देने की वो पेशकश करूं, तो क्या तुम मेरी पेशकश कबूल करोगी? नहीं, मैंने जवाब दे दिया। और अम्मी, मैं वादे तौर पर तुम्हें बता चुकी हूँ कि तुम्हारी किसी भी मुजरमाना सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनूंगी, और ऐसी सूरत में तुम्हारी पेशकश कैसे कबूल कर सकती हूँ? तो फिर तो मैं यही कह सकती हूँ कि तुम्हें मेरी दोस्ती मंजूर नहीं। उसके लहजे से मायूसी का इज़हार हो रहा था। दोस्ती से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं, और दोस्ती बेगर्ज भी तो होती है, बोलो क्या नहीं होती? और मुझे इसका कोई तजर्बा नहीं। तो अब हो जाएगा, मैंने मुस्कुराकर कहा और कॉफ़ी का घूंट लेने लगी। तुम्हारा इरादा कब तक दिल्ली में रहने का है? उसने मालूम किया। फिलहाल कोई अंदाज़ा नहीं। हाँ तो मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि इस होटल में ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी। तो फिर कि किसी और होटल में चली जाओगी? होटल में नहीं, घर में, और किराए पर किसी घर की तलाश में हूँ। फिर तो तुम शायद तवील अरसे दिल्ली में क़याम का इरादा रखती हो, और मैंने तुम्हें बताया ना कि अभी मुझे कुछ नहीं मालूम। यहाँ मुझे ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं और कम अरसा भी, और यहाँ से वापस कलकत्ते ही जाओगी। कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ जाऊँ। इसका जवाब मुझे आने वाला खुद वक़्त देगा, और वक़्त और हालात के गिर्द मुझे कहाँ कहाँ लिए फिरे कुछ खबर नहीं। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम अंदर से बहुत दुखी हो। रानी मेरी तरफ देखते हुए बोली, और फिर कॉफ़ी का आखिरी घोंट लेकर मग ट्रे में रख दिया। मुमकिन है तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त हो, और मेरा ख्याल है कि तुम हीरो के हसूल के बाद शायद दिल्ली में नहीं रुकोगी। मैंने मौजू गुफ्तगू दानिस्ता बदल दिया। हाँ, फिर मैं बम्बई लौट जाऊंगी। अच्छा, अब तुम सो और कल मुलाकात होगी। और वो उठकर खड़ी हुई और चलते चलते एक बार फिर अपनी पेशकश दोहराई। मुझे अफसोस है रानी कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं।
इतनी बड़ी पेशकश इससे पहले मैंने कभी किसी को नहीं की और मुझे तो इस पर हैरत है कि तुम इतनी बड़ी रकम को नज़रअंदाज कर रही हो। अगर चाहो तो ठंडे दिल से मेरी पेशकश पर गौर कर लेना और मैं कल तक तुम्हारे आखिरी जवाब का इंतज़ार कर सकती हूँ। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। तुम्हारी मर्जी, लेकिन कल भी मेरा जवाब यही रहेगा। ये कल देखेंगे। वो आहिस्ता से हंसी और रानी चली गई तो मैं दरवाज़ा बंद करने के बाद पलटी और नीला बल्ब जलाकर ज्यादा पावर का बल्ब बुझा दिया। बिस्तर पर लेटने के बाद मुझे सोने में ज्यादा देर नहीं लगी थी और दूसरे दिन सुबह मैं सोकर उठी तो 12:30 बजने वाले थे और मुझे शहजाद का ख्याल आया और उसने तो मुझे आज दोपहर को बुलाया था और जल्दी जल्दी नहा धोकर मैं तैयार हुई और मेकअप करके नीचे पहुंच गई। मैं शहजाद के करीब पहुंची तो मुझे देखकर चौंक उठा। इस मेकअप में शायद मुझे पहले भी देख चुका था और उसके चौंक उठने की वजह यही मुमकिन थी। आओ शहजाद, डाइनिंग हॉल में चलकर खाना खाते हैं, मैंने उसे मुखातब किया। आप खातून? उसने यकीनन मुझे मेरी आवाज से पहचान लिया था और मेरा नाम सावित्री है, मैं धीरे से बोली। जी हाँ, मैं जानता हूँ आपको। और फिर मैं उसे साथ लीव होटल के डाइनिंग हॉल में आ गई और खाने का ऑर्डर देकर मैंने पूछा, कोई मकान देखा तुमने? जी हाँ खातून। खातून नहीं सावित्री, मैंने उसे फिर टोका। जी सावित्री जी, वो गड़बड़ाकर बोला और फिर अपने ऊपर काबू पाकर बताया कि अब्बा जी के एक दोस्त हैं, उनका मकान खाली है। मैं उनको चचा कहता हूं और उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी है कि किराया नहीं लेंगे। मकान है कहाँ? हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं और वो कोचा चीलान कहलाता है। और तुमने उनसे क्या कहा, किस लिए मकान चाहिए? और मैंने उन्हें आपके बारे में वही सब कुछ बताया है जो अपने घर वालों को बताया था। और वजह ये कि अभी वो अब्बा जी से ये जिक्र छेड़ बैठे तो, लेकिन तुम्हारे घर वालों को तो मैंने कुछ और बताया है कि अपने एक अजीज के यहाँ रहने जा रही हूँ। हाँ ये भी है। वो सोच में पड़ गया। खैर ये तो कोई ऐसी बात नहीं। तुम अपने घर वालों से कह सकते हो कि बाद में मेरा मिजाज ऐसा है कि अलग थलग ही रहना ज्यादा पसंद करती हूँ। और इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि मैं कम ही किसी का एहसान लेती हूँ। बहरहाल कोई भी बात बनाई जा सकती है और मैं 1-2 रोज के अपने अजीज के यहाँ रहकर किराए के मकान में मुंतकिल हो गई हूँ। और ये बताओ कि उस मकान में कोई और तो नहीं रहता? मेरा मतलब ये कि मकान 2 मंजिला तो नहीं कि ऊपर वाली मंजिल पर खुद मालिक मकान या कोई और रहता हो? जी हाँ, मकान 2 मंजिला ही है, मगर ऊपर वाली मंजिल के लिए अलग जीना भी है और वहाँ चचा हमीद अपने मुक्त सिर से खानदान के साथ रहते हैं। मुक्त सिर से तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने वजाहत चाही। चचा हमीद हैं और उनका बेटा मजीद, और हाल ही में मजीद की शादी हुई है और मेरी गैर मौजूदगी में इस वक्त मैं कलकत्ते में था और चची का इंतकाल हो चुका है। और मैं उस पर कुछ ठटकी कि उस मकान के ऊपरी हिस्से में कुछ लोग रहते हैं और मालिक मकान के बेटी की शादी को ज्यादा अरसा नहीं हुआ। इसका मतलब था कि वह नौजवान था और किसी नौजवान का मेरे करीब होना खतरे से खाली नहीं। और ऐसी सूरत में चंपा उस नौजवान को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती थी। और मैं इसी पर गौर कर रही थी कि वेटर खाना लाकर मेज पर लगाने लगा। आपकी सोच में पड़ गई खातून। वेटर चला गया तो शहजाद ने मुझसे दराफत किया और उसने शायद मेरे चेहरे से अंदाजा कर लिया था कि मैं किसी सोच में गुम हूं। और तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं रहना चाहती। और मैंने सालन की डिश उठाते हुए कहा, और तुम निकालो सालन। आपने शायद ये कहा था कि आपकी मौजूदगी से घर के दूसरे अफराद को नुकसान पहुंच सकता है और यही सूरत वहां हो सकती है। तुम कोई ऐसा मकान देखो जहां नीचे या ऊपर कोई और ना रहता हो और बिल्कुल अलग हो वो मकान, मैंने उसे समझाया। फिर ठीक है, मैं चचा हमीद को मना कर दूंगा। और उसके बाद हमने खाना खा के चाय पी और हम चाय पी ही रहे थे कि मुझे एक जानब से रानी आती दिखाई दी और मैं समझी कि वो भी खाना खाने आई होगी। हेलो सावित्री, वो करीब आकर मुझसे मुखातब हुई। हाय कमल, कम ऑन। और मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और वो मेरे करीब ही बैठ गई तो मैंने उससे शहजाद का तारफ कराया। माई बॉयफ्रेंड मिस्टर शहजाद, ग्लेड यू मीट यू। उसने शहजाद की तरफ मसाफे के लिए हाथ बढ़ाया और माई नेम इज कमल। और शहजाद ने भी अखलाकन उससे मुलाकात पर खुशी का इजहार किया और मैंने उसे के खाने के लिए पूछा।
खाना खा चुकी हूँ और मैं तुम्हारे पीछे एक मेज पर बैठी थी और मेरे साथ भी एक बॉय फ्रेंड है, कहो तो उसे भी इसी मेज पर बुला लूं। वाई नॉट। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा और जिधर रानी ने इशारा किया था उस मेज पर एक वजीही नौजवान बैठा नजर आया और मैं समझ गई कि वो नौजवान भी रानी के इन्हीं साथियों में से होगा जो उसके साथ बंबई से दिल्ली आए थे और अपने साथियों से यकीनन रानी ने राब्ता कायम करके अपनी नई शख्सियत के बारे में बता दिया होगा। मैंने वेटर को बुलाकर मजीद 2 चाय लाने को कहा और उस नौजवान का नाम रानी ने जहांगीर बताया और मैं जल्दी महसूस कर लिया कि जहांगीर मुझे पसंदीदगी की नज़रों से देख रहा था और तकरीबन यही हाल शहजाद का था। वो कमल को चोर नज़रों से देखे जा रहा था और उन दोनों ही को मालूम नहीं था कि उनकी पसंदीदगी या चाहत उस मेकअप के लिए थी जो मेरे और रानी के चेहरों पर था। और उस वक्त मुझे ये बात बड़ी अजीब सी महसूस हुई कि उन दोनों ही ने ऐसे चेहरे पसंद किए थे जिनका कोई हकीकी वजूद नहीं था। रानी बहुत तेज थी, उसने ये बात फौरन ही महसूस कर ली और कहने लगी, सावित्री, क्यों ना हमारे बॉयफ्रेंड अपनी जगह तब्दील कर ले। और फिर इससे पहले कि मैं कुछ कहती उठ खड़ी हुई और जहांगीर से बोली, तुम अपनी नैसी के पास आकर बैठ जाओ और मैं वहां से अपने बी लोड के करीब बैठ जाती हूँ। और जहांगीर कदरे बौखलाया, मगर रानी ने अपनी बात पर इसरार किया तो उसे उठना ही पड़ा और मुझे ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। शहजाद पर भी मुझे गुस्सा आया था और उससे मुझसे कुछ इश्क का दावा था और दूसरी हसीन लड़की देखते ही फौरन बदल गया। फिर चाय आ गई और मैंने देखा कि रानी शहजाद से सरगोशियों में कुछ कह रही थी और ज़रा देर बाद शहजाद भी धीमी आवाज़ में रानी से बातें करने लगा और यूं मालूम हो रहा था जैसे वो दोनों वहां अकेले हों। और रानी मुझसे बोली, हम कमरे में जा रहे हैं और तुम्हारी बॉयफ्रेंड को 1 घंटे के बाद वापस कर दूंगी और उस वक्त तक मेरे बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है ना। और ये कहते ही वो शहजाद का हाथ थाम कर उठ खड़ी हुई। फिर वो दोनों हाथ में हाथ डालकर डाइनिंग हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। और मैं ज्यादा बेतकल्फी पसंद नहीं करती मिस्टर जहांगीर, मैंने कहा, और यू आर वेरी ब्यूटीफुल मिस सावित्री, आई लव यू। जहांगीर मेरी तरफ देखकर ख्वाबनाक सी आवाज में बोला और जहांगीर की नजरें मेरे नजरों से मिली तो अचानक मेरे ज़हन को एक झटका सा लगा और दूसरे ही लम्हे मेरे सारे जिस्म में एक तेज नशा सा तैरने लगा और हर तरफ मुझे रंग ही रंग नजर आने लगे। और उसी लम्हे मुझसे नजरें मिलाते हुए जहांगीर ने मेरा हाथ अपने हाथ में थाम लिया। आई लव यू, यू माई डार्लिंग। और मेरे होंठ जैसे खुद ब खुद हिलने लगे और मुझे खुद अपनी आवाज़ अजनबी सी महसूस हुई और फिर मैं चौंक उठी और मेरी आंखों ने नसार को अपने करीब बैठे देखा और उसने मुझे मुखातब किया, मेरी माबला नसार। मेरे होंठ लर्जे और उसके बाद मुझे याद नहीं कि मैंने कब वेटर को बुलाकर बिल अदा किया और कब नसार का हाथ थामे वहां से उठकर दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में आ गई और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करते ही नसार ने मुझे खुद से करीब कर लिया और खुद फरामोशी के वो लम्हात मेरी रूह को सरशार कर रहे थे कि अचानक ना जाने कैसे वो सारा तिलस्म टूट गया। एक आशना खुशबू को मैंने अपने बहुत करीब महसूस किया और वो खुशबू अजीम मुहिम्मन की कहना खजीरा की थी। और फिर मैंने बिस्तर पर खुद को जहांगीर के साथ इस हालत में देखा और मुझे खुद भी शर्म सी महसूस होने लगी।